लोग म्यूट हो जाएं प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल. I would like to welcome you all in the Charak Jayanti celebration program today on behalf of the whole team of this event and on my own behalf. I feel honored and wish to extend my sincere gratitude to national and MP state executives of Vishwa Ayurved Parishad for giving me an opportunity to coordinate a very thought-provoking as well as interesting contest as the national coordinator. It is Charak Genius Challenge, an all India paragraph writing competition for youth of Ayurveda. So what is this contest? आइए देखते हैं ये कॉन्टेस्ट क्या था. ये कॉन्टेस्ट ओपन फॉर ऑल था, यानी आयुर्वेदा के सारे स्टूडेंट्स इससे पार्टिसिपेट कर सकते थे. ये स्टूडेंट्स चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर पीएचडी स्कॉलर्स हो. अब करना क्या था इसमें? तो इट वाज वेरी सिंपल एंड इजी टू पार्टिसिपेट. एक्चुअली इसमें हर पार्टिसिपेंट को एक चरक संहिता से अपना सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा श्लोक सिलेक्ट करना था और श्लोक को मैक्सिमम 200 वर्ड्स में पैराग्राफ में लिखना था. इस पैराग्राफ में 4 सब हेडिंग्स उसे इंक्लूड करनी थी. इसमें क्या क्या था? पहला वर्ड्स था, वो श्लोक था जो उसने सिलेक्ट किया. उस श्लोक के साथ उसका रेफरेंस देना था, रेफरेंस के साथ उसका मीनिंग बताना था और साथ में जो लास्ट पॉइंट हमने रखा था दैट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कि उसमें उस स्टूडेंट को बताना था, उस पार्टिसिपेंट को ये बताना था कि क्यों उसको ये पसंद है, क्यों उसको ये ही पर्टिकुलर श्लोक उसका फेवरेट है. सो ये हमारा एक्चुअली कॉन्टेस्ट था जिसमें अभी जैसे तिवारी जी बता ही रहे हैं कि इसमें हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला. And I feel proud and happy as well to share that we have got more than 500 entries, not only from every corner of the country, but few entries we have got our neighboring countries also, from Nepal, Bangladesh, and Sri Lanka. We have announced this contest on July 13 only, and the last date of submission was July 18. यानी केवल 4 दिन का समय हमने दिया था. एंड सो इन सच ए शॉर्ट ड्यूरेशन वी हैव गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड सपोर्ट. इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली आवर इवेल्युएटर टीम. आप सभी को मालूम है इतने सारे 500 प्लस हमारी एंट्रीज थी और लगभग 100 के करीब एंट्रीज को हमने रिफ्यूज किया टू एक्सेप्ट क्योंकि वो लेट सबमिशन था. So I want to thank especially our evaluated team of very enthusiastic and esteemed academicians. So first of all, I would like to thank Dr. Pooja Sabarwal from Chaudhary Brahma Prakash, Charak Ayurveda Sansthan, Delhi. I would like to thank Dr. Poonam Savarkar, Mahatma Gandhi Ayurveda Medical College, Wardha. I would like to thank from bottom of my heart Dr. Sucheta Rai, Associate Professor, RD Memorial Ayurveda PG College and Hospital, Bhopal. I would like to give my sincere thanks to Dr. Swati Vyas and Dr. Vinita Patil from Sri Sai Institute of Ayurvedic Research and Medicine, Bhopal. So, इस पूरे contest में we have selected top 10 champions who are going to recite their paragraphs here in this event. I congratulate and wish them a very good luck. I appreciate and thank to all participants for giving us such a huge response and to make it a grand success. As we all know, to win or to lose is not a big deal, but it is more important to participate since it gives us an experience to do better in future. और आप सभी को मालूम है all participants will be given e-certificate of participation too. मैं कहूं कि इससे अच्छा चरक जयंती को के दिन जो आचार्य महर्षि जिसको आप लीजेंड कह सकते हैं चरक, उनको हम इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट नहीं दे सकते थे. उनको जयंती का उपहार हमने दिया. हमारे 500 बच्चों ने चरक संहिता को इस दौरान पढ़ा, उसमें से अपना श्लोक ढूंढा. ये सचमुच बहुत अच्छा उपहार है हमारे नन्हे या कहना चाहिए युवा आयुर्वेदा स्कॉलर्स का महर्षि चरक के प्रति. सो
I felt sorry for those who are जिनके हमने एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पाए और हम लेट सबमिशन के कारण, क्योंकि हमारे पास समय कम था. Once again, I would like to thank you all, and I want to say happy Charak Jayanti to all, and this is all from my side, and thank you very much being the part of this contest. और इसके ठीक बाद हमारे जितने भी स्कॉलर्स टॉप 10 चैंपियंस हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो आपके सामने अपना पैराग्राफ और अपने ओरिजिनल थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे. और इसके लिए मैं बुलाती हूँ आगे, इनवाइट करती हूँ जो मॉडरेटर की भूमिका निभाएंगी इस पूरे प्रेजेंटेशन में. हमारे जो स्कॉलर्स प्रेजेंट करेंगे उसमें मॉडरेटर की भूमिका निभा रही हैं डॉक्टर प्रतिभा पांडे, अ वेरी एंथुजियास्टिक एंड वेरी एनर्जेटिक मोटिवेटर, हमारी युवा डॉक्टर प्रतिभा पांडे. प्लीज वेलकम हर. डॉक्टर प्रतिभा, Yes, प्लीज प्लीज. थैंक यू सो मच डॉक्टर बबीता शर्मा मैम. मैम का हमेशा ही ये प्राइम फोकस रहता है कि ना केवल एकेडमिक्स लेकिन उनके स्टूडेंट्स ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी मैम हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग और एंथुसियास्टिक बहुत ही कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के चैलेंजेस कभी कभी लेकर आती हैं कि हमने भी कभी उनके बारे में नहीं सुना होता. चलिए मैं अपने सेगमेंट को स्टार्ट करती हूँ बहुत ही सुंदर लाइन से कि गुरु को पारस जानिए करे लौह को स्वर्ण. गुरु को पारस जानिए करे लौह को स्वर्ण. गुरु और शिष्य जगत में केवल दो ही वर्ण. आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग. मैं हूँ डॉक्टर प्रतिभा पांडे और मैं आप सभी का विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी की मौजूदगी से आपने इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत और खास बनाया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ. समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम और आचार्य चरक के जन्म दिवस पर आचार्य चरक जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं आज इस दिन पर आचार्य चरक को शत शत नमन करती हूँ और उनसे मेरी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सदैव हम सभी पर यूं ही बना रहेगा. तो चलिए अब मैं आपसे इस कार्यक्रम के बहुत ही रोचक मोड़ पर मिली हूँ. यहाँ से हम जाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सफर की ओर. जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व आयुर्वेद परिषद हमेशा ही आयुर्वेद जगत के विद्यार्थियों को एनकरेज और मोटिवेट करने के लिए नित्य नए कार्यक्रमों को समय समय पर उनका आयोजन करता रहता है. तो इस वर्ष भी चरक जयंती के उपलक्ष्य में विश्व आयुर्वेद परिषद मध्य प्रदेश शाखा ने आयोजन किया था चरक जीनियस चैलेंज का, जिसके बारे में डॉक्टर बबीता मैम ने आपको बताया. मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने ये सोचा कि इससे अच्छा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हो जाए आचार्य चरक को. तो हमने सोचा कि इस समय हम सारे स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो चरक संहिता को दोबारा पढ़ें और उसमें से अपने फेवरेट श्लोक को सेलेक्ट करके उसमें अपने पॉइंट्स अपने जो भी वो पर्सनल थॉट्स हैं उनको वो अगर पैराग्राफ बना के हमको सेंड करें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट, इस थीम के साथ इस कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था. ये एक ऑल इंडिया पैराग्राफ राइटिंग कॉन्टेस्ट था फॉर यूथ ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद जगत के आप सभी युवाओं के लिए, आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए, एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए. अब यहाँ से क्या होने वाला है कि मैं आपको मिलवाऊंगी हमारे 10 चैंपियन से. जी हाँ, सोचिए महज 4 दिन में आपने हमें इतना सारा प्यार दिया. महज 4 दिन में 500 प्लस एंट्रीज हमारे पास आई और ना केवल मध्य प्रदेश से लेकिन देश के हर कोने से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, आप जहां बात करेंगे वहां से हमारे पास एंट्रीज आई हैं. और बहुत खुशी की बात यह भी है कि देश के बाहर से भी हमारे पास एंट्रीज आई हैं. बहुत अच्छा लगता है ना जब हम कोई ऐसा प्रयास करते हैं और उसे इतना प्रेम और सम्मान मिलता है. मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके इसे एक ग्रैंड सक्सेस बनाया, इसे सफल बनाया. थैंक यू सो मच. चलिए अब यहाँ पर मैं आपको अपने टॉप 10 चैंपियन से 500 पार्टिसिपेंट्स, 500 प्लस एंट्रीज के बाद जिन्होंने अपनी जगह टॉप 10 में बनाई है, मैं उनसे आपसे मिलवाने वाली हूँ, उनका परिचय आपसे करवाने वाली हूँ. लेकिन आप ये सोचेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है. इसका उद्देश्य ये है कि जब भी हम किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे ये चल रहा होता है कि यार इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पे ये कॉन्टेस्ट आयोजन हो रहा है, क्या मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा, क्या मेरी रैंक लग पाएगी. तो ये टॉप 10 चैंपियंस को दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है
कि ये मेरे और आपके जैसे ही होते हैं। जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगली बार मैं भी वहां पर होऊंगा। तो और एक बात और, अगर आप इनकरेज और मोटिवेट नहीं भी होना चाहते तो भी आप इन 10 पार्टिसिपेंट्स को सुने, क्योंकि आज के इस शुभ दिन पर आपको आचार्य चरक के 10 श्लोकों को पुनः सुनने का और उन्हें समझने का और दूसरों के व्यू पॉइंट्स जानने का मौका मिलेगा। उन 10 चैंपियंस का मैं परिचय आपसे करवाऊं उसके पहले मैं आपका परिचय कराना चाहती हूं हमारी इवैल्यूएटिंग टीम से। जी हाँ, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही एंथुसियास्टिक हमारी इवैल्यूएटिंग टीम, जिन्होंने इतने कम समय पर इतनी सारी एंट्रीज को उन्होंने एग्जामाइन करा और हमें हमारे टॉप 10 विनर्स दिए, ताकि हमारा ये प्रोग्राम, ये चैलेंज, ये कॉन्टेस्ट सक्सेसफुल हो सके। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूंगी डॉक्टर पूजा सबरवाल मैम चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान न्यू दिल्ली से हैं। इन द डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर मैम एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सुचेता राय मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम है आरडी मेमोरियल पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से। मैम एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र स्त्री रोग। साथ ही डॉक्टर पूनम सावरकर मैम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैम एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, महात्मा गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज वर्धा महाराष्ट्र। साथ ही डॉक्टर स्वाति व्यास मैम फ्रॉम मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल, आप संहिता विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और हमारी बहुत ही प्रिय डॉक्टर विनीता पाटिल मैम फ्रॉम श्री साई इंस्टीट्यूट श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च मेडिसिन एंड मेडिसिन फ्रॉम भोपाल। और मैम इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर मैम एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहती हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी एस्टीम्ड मेंबर्स ने जो एग्जामिनेशन किया है वो 2 लेवल पर किया है। सबसे पहला जो लेवल था वो स्क्रीनिंग लेवल था। स्क्रीनिंग लेवल आप समझते हैं, ऊपरी ऊपरी हम छांट छटाई जो करते हैं। एंड सेकेंड लेवल हमारा फाइनल लेवल था। तो मैम, तो आप सभी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। हमारी इवैल्यूएटिंग टीम का मैं एक बार और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे टॉप 10 चैंपियन से मिलने के लिए। तो आप सभी एक्साइटेड है ना? मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर अब्दुल मुहीत को। आप बीएमएस फाइनल ईयर के छात्र हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी शिलोंग। तो शिलोंग से आप जुड़े हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि मध्य प्रदेश के शाखा के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था, लेकिन देखिए शिलोंग के एक विनर हमारे साथ हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अब्दुल। आप मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Hello, congratulations. Your verse has been selected in our competition. So Thank you so much, ma'am. Tell us something about your shlok. Yes, ma'am. Respected delegates, it gives me immense pleasure to be present in such a great occasion and platform. First of all, I want to thank Vishwa Ayurved MP unit for conducting the contest and giving me this opportunity. My favorite sloka from Charak Samhita is from Charak Vimansthan 8/14, that is Kritsna hi loko buddhimatam acharya shastruscha buddhi abuddhimatam. It means that the entire world is the teacher to the intelligent and the foe to the unintelligent. Okay, so why did you choose this verse only? What's so special about this verse? Yes, ma'am. It is my favorite verse. In this regard, I would love to mention the context in which the sloka has been quoted first. If we see the initial part of the sloka, Acharya mentions that na cha avahi asti sutram ayurvedasya param, means that there is no end to learn Ayurveda. Thus, in this verse, Acharya mentions about how Ayurveda should be taught and learned. So the verse provides an insight that the entire world is the source of knowledge, means that for the intelligent, the entire world is preceptor, while the unintelligent consider the world as enemy. I gave one example in this regard, that is, a snake may be enemy for someone, but may be a key of inspiration for another. Inspiration here is that snake fangs inspire better microneedle patch that deliver medication less painfully and more safely. Thus, we can interpret that Acharya has mentioned about integrative approach or multidisciplinary approach of learning. If we consider the present context even, COVID-19 is a new illness.
To know the disease pathology and for diagnosis, we have to take the help of modern scientific tools. Again, Acharya has also mentioned Tatra Dhanvantari Ramam Adhikara Kriyavida in Gulma Chikitsa. Acharya has also mentioned various analogies in explaining the verses. This signifies that Acharyas were keen to gain knowledge from every source. This shows the integrative approach of Acharya. Thus, the attitude should be to assimilate modern techniques in teaching and learning process as per the need. We have to believe that there is something to learn and take from every theory, every person. At last, I want to conclude by saying that each and every object in the universe is the source of knowledge. It depends on us how minutely we look into them and how much optimistic we are. Acharya Shushruta also mentioned, Ekam Shastram Adhyana na Viddat Shastra Nishtayam, Tasmat Duhusrutam Shastram Bijanyat Chikitsa. That's all. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल. सही कहा गया है कि इट्स ऑल अबाउट विलिंगनेस एंड अटेंशन. अगर आप ध्यान दें तो आप हर चीज समझ सकते हैं, हर चीज जान सकते हैं. चलिए, तो ये थे हमारे फर्स्ट विनर, फर्स्ट चैंपियन. अब चलते हैं हमारे सेकेंड चैंपियन की तरफ, जो कि है डॉक्टर धन्वंतरी झा फ्रॉम DY पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज पुणे. हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर झा. Namaste, Dr. Pratibha. Thank you so much, and thanks to Vishwa Ayurved Parishad for such an interesting contest. Basically, I am Dr. Dhanvantari Kumar Jha from Dr. DY Patil Ayurved College, Pune. I am basically a PhD scholar in the Department of Kaya Chikitsa. And when I saw about this contest, it was really fascinating, basically, because we are always inspired by Acharya Charak. And what better than celebrating the birthday of Acharya Charak on this occasion. And very happy Charak Jayanti to all the participants and all the teachers, preceptors, and all the members and the hosts of Vishwa Ayurved Parishad. I'm really thankful to Dr. Babita Sharma ma'am and Dr. APS Chauhan for inspiring everyone to do this. Okay, first of all, congratulations to you. And your verse has been selected in our competition, and you are, one of our winners. So quickly tell us something about your shloka, which gave you this achievement, Yes, exactly. Like I always say that there can never be any shloka in Charak Samhita which can be insignificant, right? But in the present context, with the growing popularity of Ayurveda, I had selected this verse. The verse is from Dirghan Jivitiya chapter of first chapter of Sutrasthan of Charak Samhita, shlok number 126, which says, Yogadapi visham tikshnam uttamam bhaishajam bhavet, bhaishajam chapi duryuktam tikshnam sampadhyate visham. Which basically means even a virulent poison can be converted into an excellent medicine when prepared and administered using the correct methods. And conversely, even a good medicine may act as a potent poison if administered improperly. Now, as I've selected this verse or this shloka, the basic reason behind selecting this shloka and the reason why I said that it is very important in the present context. Regarding the COVID situation, what has happened is the popularity of Ayurveda has seen huge growth. Common people have been attracted towards Ayurveda. And now we also see that with the growing business of Ayurveda all over the world, the availability of Ayurvedic medicines as OTC, over-the-counter medicines, has soaringly increased. Now, in this time, if the safest of Ayurvedic medicine, if taken by a person without a prescription from a learned Ayurveda physician, may cause harm to them. Maybe the Ayurvedic medicine was prepared properly, maybe it was perfectly made according to the classics and was the safest. But because of the wrong administration, because of the wrong use of that medicine, even after being the safest, it will prove to be a poison. So this goes for the second line of the shloka. While on the for the first line of the shloka, I would like to say that there has been a lot of talk about Ayurvedic medicines that it causes heavy metal toxicity in especially Rashastra Aushadhis. And in that condition, the first line, that is Yogadapi Visham Tikshnam Uttamam Bhaishajam Bhave. That means
the best of the virulent of the poisons, the most potent of poisons, can also act as a medicine. And that is why we have to understand that the safest of procedures, the processing, if the administration of the medicine, if everything is proper, even the poisons can turn into a good medicine, and that can be of very good use. And in cases like cancers or many situations where we use Vatsnab or heavy metal things, in those places as well, those poisons can act as nectar for us. And so the shloka basically calls for judicious use of Ayurvedic medicines. Okay. Thank you so much. I got your point. Basically, you are trying to say कि आजकल जो ये चलन बन गया है कि हम जाते हैं एंड देन हम कहते हैं कि वो दवाई दे दीजिए, वो आयुर्वेद की डाबर की दवाई दे दीजिए, और आपको पता नहीं होता विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, एंड देन यू से कि यार वो मेडिसिन वर्क नहीं करी. तो बेसिकली हमारी संहिताओं में हमारे आचार्य पहले ही बताकर गए हैं कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. थैंक यू सो मच फॉर सेलेक्टिंग दिस वर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट. Thank you so much. Namaste, and thanks to Vishwa Ayurved Parishad. Okay, so now let's move to our third winner. थर्ड विनर है हमारी बहुत ही प्यारी मिस नुपुर भत्सी वाले. ये बहुत ही प्यारी, मैंने इसलिए इनके लिए वर्ड ऐड किया है बिकॉज ये यंगेस्ट है हमारे चैंपियंस में. ये BMS फर्स्ट ईयर की छात्रा है फ्रॉम पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल. हेलो मिस नुपुर, आप सुन पा रही है मुझे? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, प्लीज. Good afternoon, everybody. Good evening, everybody. Sorry. Yeah. Okay, go ahead. Tell us something about yourself, your shloka. Good evening, everybody. First of all, I would like to wish everybody a happy Charak Jayanti. Myself, Nupur Bharjiwale. I am BMS first year student studying in Pandit Kushilal Sharma Government Ayurvedic College and Institute, Bhopal, Madhya Pradesh. I chose shlok. शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य गच्छान अनुबंधस्य पर्यारे आयुरुच्यते. This is श्लोक number 42 from first chapter of Sutrasthan in Charak Samhita. This श्लोक explains the definition of Ayu as it is the combination of Sharir, Indriya, Sattva and Atma, which together forms the living body. Even if one of them is not there, there is no life. It also tells us about the synonyms of life such as Dhari, which means the one which prevents the body from decaying, Jivitam, which means which keeps alive, Nityak, which means which keeps throughout the discontinuous and dynamic nature of life, Anubandha means which maintains the harmony among the mind, soul, sense and body and keeps transmigrating from one body to other even after our death. My reason for choosing this slok is that this slok was among the first few sloks of Ayurveda which I got introduced to. As I'm in my first year, this slok I got to know broader meaning of life. It was a great way of getting introduced to Ayurveda. Thank you. Thank you so much, Miss Nupur. तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्सेप्ट. और आपका रीजन बहुत ही ज्यादा जेन्युइन लगा हमारी इवैल्यूएटिंग टीम को, हमारे जजेस को, कि आपने कितनी खूबसूरती से, कितनी सादगी से आपने बताया कि आपने सबसे पहले ये श्लोक पढ़ा और आपको इस श्लोक से कितना ब्रॉडर एस्पेक्ट आपको समझ में आया लाइफ का एंड बेसिकली हेल्थ का और आयुर्वेद क्या कहता है. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर. ऐसे ही आगे पार्टिसिपेट करते रहे और हमेशा सिंप्लिसिटी को अपना स्ट्रेंथ बनाए. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Okay, let's move to our fourth winner. Ji haan, let me introduce you to Dr. Jasim Rahman from PNM AMC Kerala. Hello, am I audible to you, Dr. Jasim? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, congratulations to you. Good evening. Happy Charak Jayanti to you. Thank you, ma'am. Okay, so tell us something about your shlok which gave you this achievement. First of all, I am honored to be participant of this Saraga Genius Challenge contest. And one of my friend, Abdul Muhit, already stated the slogan. It is the Krishno Hilogo Buddhimada Majarya, Shatrusya Buddhimada. Dr. Muhit has already said something about slogan. I will add some more points. We know an Acharya is the one who teaches or learns.
We're half students. We know there is nothing knowledgeable as sloga. That is the word. We have seen many people in the society who were not well educated but has well knowledge. They acquire their knowledge, their observations in nature. That is the Anumana. We know that Trivida Pariksha is Pratyaksha Anumanda Aptabdesha. I think for them the world itself is the Apta. The world as the Apta. We know the Ayurveda is the result of our ancient brilliance towards nature. Because we know the Ayurveda is the conglomeration of many sciences. Ayurveda accepts every sciences. We do references about Jyotisham, astrology, Vastu Vidya. This has been already said by Mohit, that is Ekam Shastra Madhyana Vidya Shastra Nischayam Tasmat Bhusudha Shastra Vidya Chikilsaka. So for Ayurveda is concerned, we have to accept many sciences, we have to learn many sciences. So having right from the world should observe the surroundings and we're very keen passion. Everything in this world is the object to mankind. What we see, what we hear. Hello, Dr. Jasim. Hello. Thank you very much. Next, Leah, please. Yeah, I think there is some technical difficulty in your area. Sorry. Yeah. Okay. Next up, please. Okay, thank you, Dr. Jasim. Yeah. Let's move to our next champion. एंड ये इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम बातचीत कर रहे हैं ना कि देश के बाहर से भी हमारे पास एंट्रीज आई हैं, तो हमारे पास देश के बाहर से एक विनर भी आए हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रिजवान की फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी एंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ढाका बांग्लादेश. हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर रिजवान. Happy Charak Jayanti to you. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. It is indeed a very happy thing for us, you know, that you joined us and participated in our contest. Now, I would also love to know about like what you feel about the same, about joining us and about participating in this contest. Sure, ma'am. Thank you. I am very proud to be a champion in this program. Thanks to all. Thank you, Vishwa Ayurved Parishad, to arrange such as program and to develop skill of all Ayurvedic students. I want Vishwa Ayurvedic Parishad arrange such as program frequently. Thank you. So tell me your verse. Tell you something about your verse. Mohammad Adwan. Hello. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. The verse you have selected. Please explain that verse. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, Charak Samhita is one of the oldest, most authoritative and comprehensive book of Ayurveda. It includes 8 sections like Sutra, Nidan, Bima, Shorir, Indriyo, Chikisha, Kalpa, and Siddha. 120 adhyas or chapter and consists 92-95 slokas. Many slokas are very useful in practical life. Among them, I think the great verse was mentioned, Charak in Sutrasthan, chapter number 9. The name of the chapter, Khuduka Chatushpadadhyay, and the verse number 26. That is, Motti Kronayam Arthishu Shakhai Pritir Upukshanam Prutiteksheshu Potheshu Bodho Vishchito Chaturvideti. It means ideal attitude of physician towards patient, friendliness, compassion towards the diseased, attachment to the curable, and indifference to those who are moving towards the end or death. This is thoughtful attitude of an ideal
physician. Their emphasis on doctor-patient relationship. The doctor-patient relationship is an important for quality healthcare practice. Okay, Yes, ma'am. thank you. Your shloka is indeed very beautiful, and thank you so much for participating in this concept and sharing your views with us. Thank you, Doctor. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Now let's move to our next winner, Dr. Chetra. Dr. Chetra is from SDM College, Udupi, Karnataka. Good evening, Dr. Chetra. Happy Charak Jayanti to you. Thank you, ma'am. Wish you the same. Congratulations to you. Your verse has been selected in our competition. Congratulations. Thank you, ma'am. Tell us something about your shloka. Okay. Myself, Dr. Chaitra from STM College of Ayurveda, Udupi. And I'm a first year PG scholar from Department of Samhita and Siddhanta. And the shloka that I've selected is from Charaka Samhita, Sharirasthana, first chapter, it is Katitha Purushya Sharira. It is a part of shloka that which I like is Vakcha Satya, Jyoti, Tamo, Amritaha. It is part 26th shloka. For explaining Karmendriyas and its functions, it specifically mentions that the verse or Satyavachana is like Jyoti and false, that is like a tamas. And why I like this shloka is because it has always raised a question in me regarding its importance in Ayurveda and its placement in Sharirasthana. Discussing about the Adhikarana of this verse, Sthanadhikarana is Sharirasthana, which deals with Karana, Utpatti, Sthiti, and Buddhi of the Sharira. Prakaranadhikarana of this verse is in the context of Srishtikrama, Dashendriya in specific. How is Satyavak important in this context? This would have rather fit better in Navaigandharni Adhyaya while explaining Dharaniya Vachika Karmas, or in Indriyopakramaniya Adhyaya while dealing with Sadvritta. But Chakrapani says Satyavachana being Dharmakrit is like Jyoti, which does prakashan of Ubhayaloka. What we speak today are not mere arrangement of words and phrases, but are those which has its impact both on this life and life after. Achievement of Chaturveda Purushartha is purpose of one's life. Satyavak is a simple way to achieve one of them, that is Dharma. As we all know, Dharmartha Kama Mokshanam Arogya Moolam Uttamam indicates necessity of this verse. Charaka Samhita, which is mainly a Chikitsa Grantha, aims at health of an individual. Hence, Charaka probably has found importance of mentioning this verse. It has been placed in Katitha Purushya Adhyaya, which discusses about Purusha, who is Pradhana to Chikitsa, and we are helping him to get devoid of Atyanta Dukkha and achieve moksha. Thus, this verse further proves that Acharya Charaka has a holistic approach towards the health of an individual. Speaking truth is now considered as just a social morality of life, or your moral that we intend to follow in our life. But the fact is, truth helps one in achieving good health and thereby moksha. That's why I like this shloka. Thank you, ma'am. Okay, your explanation was wonderful, beautiful, I must say. Thank you so much for participating in our contest. Thank you. चलिए अब अभी तक आपने 6 चैंपियन से आप मिल चुके हैं, अब हमारे पास 4 चैंपियंस और बचे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मोटिवेटिंग होगा. अब मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ हमारे नेक्स्ट चैंपियन से, डॉक्टर सौरभ निगम. सौरभ निगम बीएमएस सेकेंड ईयर के छात्र हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ से. सौरभ, डॉक्टर सौरभ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी. सबसे पहले तो नमस्कार. सबसे पहले तो चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आयुर्वेद परिषद के सदस्यों ने, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि अपने विचार आप सभी के समक्ष रख सकूं. जी, तो आप अपने विचार जल्दी से हमारे समक्ष रखिए कि आपने कौन सा श्लोक सेलेक्ट करा था और ऐसा क्या लिखकर हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद इवैल्यूएटिंग मेंबर्स को दिया था कि उन्हें आपको सेलेक्ट करना पड़ा. मैंने चरक संहिता सूत्र स्थान के दीर्घ अध्याय के 15 श्लोक से किया था, जो इस प्रकार है. धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्तश अपहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य च. आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का उत्तम मूल है. रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला है. अर्थात धर्म, अर्थ और काम तो साधनभूत है और इसका साधन मोक्ष है. इस श्लोक को चुनने का मकसद मेरा ये रहा है क्योंकि इस श्लोक में सबसे पहले तो पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है. पुरुषार्थ हमारे जीवन का आधारभूत सार है. पुरुषार्थ की प्राप्ति आयुर्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है. ऐसे हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में पुरुषार्थ आरोग्य के बिना संभव नहीं है और
अगर बात करें आरोग्य की, तो आरोग्य आयुर्वेद के बिना संभव नहीं है। अब आयुर्वेद का वर्णन करेंगे तो आयुर्वेद का अध्ययन से हमें क्या होता है कि हम धर्म के मार्ग पर चलते होते हैं। जैसा कि आचार्य चरक के अनुसार प्रागपि च धर्म अद्रतेन न शुभोत्पत्ति अन्यतो अभूता, अर्थात किसी भी अशुभ या अमंगल कार्य के बिना रोग की उत्पत्ति संभव नहीं है। अर्थात दूसरा भी कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति आज के परिपेक्ष में दूसरों से सम्मान की कामना करता है, तो आयुर्वेद चिकित्सा की सिद्धि द्वारा हमारी यह कामना सफल होती है। अतः आयुर्वेद का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का मूल रूप आरोग्य है। थैंक यू वेरी मच सौरभ, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्लीज। जी, तो अब नेक्स्ट हमारे चैंपियन की तरफ पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट चैंपियन है डॉक्टर प्रिया हजारे फ्रॉम NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आप इन डिपार्टमेंट ऑफ स्त्री एंड प्रसूति तंत्र में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। वेलकम डॉक्टर प्रिया हजारे, कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you. Good evening and happy Charak Jayanti to all. I am very thankful to organizing committee, Babita ma'am, APS Chauhan sir, for organizing such a wonderful competition. I want to explain my words. I had taken this from the Charak Sarirasthan 8th Jati Sutra अध्याय। इस श्लोक में पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर बताया गया है। उस टाइम बताया गया है जब हमारे आचार्यों के पास ना सोनोग्राफी थी और ना ही CT स्कैन था। तो इसमें पूरा स्टेप वाइज आचार्य चरक ने पूरा बताया है। वो मुझे ये वाला श्लोक मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। इसमें जो आचार्य चरक ने वर्ड्स लिए हैं, विमुच हृदय बस्ती शिरो अवघ्राति परिवर्तते अधो गर्भ प्रभावितम उपक्रमित। इसमें आचार्य चरक ने स्टेप वाइज जो मॉडर्न में आज के टाइम में जो कार्डिनल स्टेप्स बताए हैं लेबर के, कि सबसे पहले बेबी का एंगेजमेंट होता है, उसके बाद डिसेंट, फिर फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, देन एक्सटेंशन, उसके बाद बेबी आउट होता है। तो इस सिंगल वर्स में आचार्य चरक ने पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर बताया है। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस वर्स द मोस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत क्विकली और बहुत ही सुंदर श्लोक से आयुर्वेद की महानता का वर्णन कर दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैंपियन की तरफ, डॉक्टर अवनीश चंद्र। डॉक्टर अवनीश चंद्र, आप दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान से हैं। नमस्कार। यस मैम। नमस्कार मैम। जल्दी से आप अपने श्लोक के बारे में हमें कुछ बताइए। मैंने ये श्लोक चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय से दीर्घयुति अध्याय से लिया है, जो 24वां श्लोक है। तुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबधेयम पितामह। यानी यह त्रिसूत्र आयुर्वेद स्वस्थ पुरुष और विकार युक्त पुरुष यानी बीमार पुरुष दोनों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाला है। यह शाश्वत है, पुण्य देने वाला है और जिसे ब्रह्मा ने स्वयं जाना है। जी, आपने इस श्लोक को क्यों सेलेक्ट करा? मैम, चरक संहिता की इस श्लोक को चूज करने के पीछे ये है, चरक संहिता प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और जिसे न जानने वालों के लोगों के मन में होता है कि ये औषधियों का संकलन मात्र है, ये व्यवस्थित चिकित्सा पद्धति नहीं है और इसमें क्लिनिकल मेथड्स का अभाव है। और लेकिन मैंने आयुर्वेद को पढ़ते क्रम में जाना है कि आयुर्वेद में हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान और औषधि ज्ञान का बहुत बढ़िया से वर्णन किया गया है और कोई भी चिकित्सा पद्धति तब भी संपूर्ण एवं व्यवस्थित मानी जाती है जब उसमें बीमारी के होने के कारण, बीमारी के होने के लक्ष्य, उसकी औषधियों का संपूर्ण विवेचन हो, संपूर्ण वर्णन हो। और मैं निश्चित तौर पे ये श्लोक पढ़ने के बाद कह सकता हूं कि हमारा आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और एक व्यवस्थित चिकित्सा पद्धति है और इसमें 2/3 पार्ट यानी 2/3 भाग क्लिनिकल मेथड्स है और 1/3 भाग औषधि का वर्णन है। और मैं अपने वेरी गुड अविनाश, बहुत बढ़िया। हाँ, आपका बहुत कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद। आपका श्लोक भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट प्लीज। अब जो हमारे यस मैम, विप्रो से भी बताते हुए मुझे अविनाश, डॉक्टर अवनीश, या थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है तो हमें थोड़ा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जो 10th पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट नहीं, जो विनर है हमारे, वो डॉक्टर सूरज राठौर है, जीजे पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज आनंद गुजरात से। लेकिन एक्चुअली उनकी तबीयत खराब है तो वो अभी हॉस्पिटल में है,
लेकिन इसलिए वो हमारे साथ अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे चैंपियन हैं और हम सभी की बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। तो आई होप कि हमारे 10 चैंपियन से मिलके आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी मोटिवेट और इनकरेज हुए होंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने टैलेंट को एग्जिबिट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और डॉक्टर एस.एन. तिवारी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। सर। थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा, आपने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत बधाई। अब मैं कार्यक्रम में आगे हमारे साथ माननीय योगेश मिश्र जी, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री, और हम सबके उन्हीं के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद आज जो इतना बड़ा वट वृक्ष बना है उन्हीं के देन है, उन्हीं के कारण वो संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने ही इस विश्व आयुर्वेद परिषद की स्थापना की है और उनकी सोच से आज पूरे विश्व में आयुर्वेद के लिए एक आयुर्वेद के विकास में कार्य कर रहा है विश्व आयुर्वेद परिषद। और सबसे पहले हम उन्हें बहुत सारी बधाई देना चाहेंगे पूरी विश्व आयुर्वेद परिषद मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से कि आज पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम था जहां पर माननीय योगेश जी भाई साहब को पुरस्कार प्राप्त हुआ है ऑल टाइम अचीवमेंट का, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके लिए पूरी विश्व आयुर्वेद परिषद मध्य प्रदेश की टीम से बधाई। और हम आगे अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचन से विश्व आयुर्वेद परिषद आज के पार्टिसिपेंट और संहिता विभाग के सभी जो टीचर जुड़े हैं उनको आशीर्वचन देने की कृपा करें। डॉक्टर योगेश सर, निवेदन है। डॉक्टर तिवारी जी धन्यवाद जी। प्रणाम सर, प्रणाम। मैं आपने और आपके निर्देशन में काम कर रही पूरी मध्य प्रदेश टोली ने थोड़े से समय में विश्व आयुर्वेद परिषद के लिए कैसे कैसे प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, इस कोविड की गहमा गहमी में भी, जहाँ कोई व्यक्ति किसी से मिलने के लिए जुलने के लिए जाना आना संभव नहीं है, तो टोली ने और विशेष करके आप सबके साथ बबीता जी को मैंने बात की थी, तो बबीता जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई लड़कियों के लिए कार्यक्रम किया जाए और मध्य प्रदेश स्तर का ही किया जाए। तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं, आपको इस टोली की अर्थात वहाँ मध्य प्रदेश की सचिव हैं, इस नाते से मध्य प्रदेश की टोली की ओर से कोई ऐसा कार्यक्रम विचार करिए जो जिसमें सभी लोग भाग लें। और उन्होंने फिर ये पूरे खाली मध्य प्रदेश करने करके पूरे राष्ट्र का एक कार्यक्रम किया है। हम लोग देख रहे हैं कि कहीं शिलांग से, कहीं पुणे से, कहीं सीवान से, माने विद्यार्थी जो है वो 10 विद्यार्थियों का जो चयन हुआ है और 10 विद्यार्थियों के अलग भी जो 400, 500, 600 विद्यार्थियों ने भागीदारी की है। थोड़े समय में ही सभी लोगों को बुलाना, संपर्क करना, उनके द्वारा जो सामग्री प्राप्त हो उसको पूरी टोली में उसका एग्जामिनेशन कराना और रिजल्ट निकालना, ये निश्चित रूप से तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति में कार्यकुशलता हो और टोली में डेडिकेशन हो। ये जो 2 गुण हैं उनसे निश्चित रूप से आपके प्रांत की टोली ने एक नए प्रकार का कार्यक्रम रखा है। और विश्व आयुर्वेद परिषद को तो इस बात की प्रसन्नता है कि जब कार्य अब से कुछ दिन 4 से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले कार्यक्रम आरंभ हुआ तो ये तय किया गया कि भाई कुछ ऐसे उत्सव ढूंढे जाएं जिनकी स्वीकार्यता भी हो, जिनकी उपयोगिता भी।
तो पहले धन्वंतरी जयंती एक ऐसा उत्सव था जो पूरे देश में मनाया जाता था, बाकी आयुर्वेद के और उत्सव प्राय नहीं मनाए जाते थे। उसी में से बात निकल के आई और आज मैं सवेरे से जिस कार्यक्रम में था, आप लोगों में से यदि कोई रहा होगा तो चरैक डांडा करके एक स्थान है, उसका गूगल मैपिंग हुआ, उसका हिसाब लगाया गया कि ये वास्तव में चरक की तपस्थली रही होगी। तो सिर्फ 5000 साल पहले, 3000 साल पहले चरक का नाम हिमालय की सुदूर पहाड़ियों पे कैसे पहुंचा होगा। और वहां भी लोगों ने देखा, आज जो लोग गए थे, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि अपने कार्यकर्ता उनको उत्तरांचल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का उप कुलपति बनाया गया है, डॉक्टर सुनील जोशी। और आज उन्होंने बताया कि आज 25 तारीख है, 23 तारीख को फिर 2 दिन पहले ही चरैक डांडा गए थे और इस प्रकार का हम लोगों ने भी आग्रह किया है केंद्र सरकार, प्रांत सरकार, इन सबसे चर्चा करके चरक की जो तपस्थली है, भाई ये तो ठीक है। कई बार जो आजकल एक प्रश्न उठता है, हम जब लोग कहते हैं कि भाई राम और कृष्ण की भूमि है ये, तो कई लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण हुए, इसका भी कोई आपके पास उदाहरण है क्या, कोई इतिहास बताइए। तो हम कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है। तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण या महाभारत चरक के काल में, उनके राम के काल में नहीं लिखे गए, कृष्ण के काल में नहीं लिखे गए, तो बाद में लिखे लोगों ने। तो वास्तव में चरक के बारे में ऐसा कहने का किसी को कोई अवसर इसलिए नहीं है कि चरक संहिता स्वयं में एक इम्बॉडीमेंट ऑफ चरक है। माने चरक संहिता है तो ये मानना ही पड़ेगा कि भाई चरक संहिता है तो चरक हुए ही हैं। और चरक भी कहते 3 लेयर, हमारे पास 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो एकदम प्रारंभ से मिलते हैं आयुर्वेद में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता। तीनों में 3-3 लेयर्स हैं। चरक में अग्निवेश तंत्र है, अग्निवेश ने सूत्र बनाए, उस अग्निवेश के बनाए हुए जो सूत्र हैं वो लुप्त हो गए होते, समाप्त हो गए होते अगर उन्हें चरक जैसा विद्वान नहीं मिला होता। और आप कल्पना करिए कि जो बेसिक लेखक है उसके नाम से ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं हुआ, चरक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चरक की टीका में एक सुंदर बात है प्रारंभ में कि ये जो चरक के जो टीकाकार थे, चरक जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार माने गए। विष्णु के जो शैया है, विष्णु की कल्पना की जाती है कि विष्णु शेष शैया पर विश्राम करते हैं। तो जो शेष नाग है जिस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, अब इसका जो मैथोलॉजिकल संदर्भ है और वैज्ञानिक संदर्भ है, इसकी चर्चा फिर कभी जब चर्चा होगी तो करेंगे। वो उस भगवान शेष नाग के अवतार, उसमें पतंजलि आए। पतंजलि ने तय किया कि मन, वाणी और काय, मनोवाक काय, मन से, वाणी से और काय से तीनों के दोष सुधारने हैं हमको। तो तीनों के दोष सुधारने के लिए जो कल्पना की गई उसी में से और चरक योग भी आया। अब योग का कैसा महत्व होता है, योग के बारे में कई परिभाषाएं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः एक, समत्वम योग उच्यते, सबके साथ समान व्यवहार करना, दुख सुख में समान रहना, ये योग है 2। लेकिन चरक ने इससे भी आगे बढ़ के उन्होंने कहा योग का मार्ग मोक्ष का मार्ग है। आप देखेंगे शारीरिक स्थान में संदर्भ मिलेगा, योगो मोक्ष प्रवर्तकः। तो ये योग से संबंध है। आज जैसे पूरे विश्व में योग का डंका बज गया और लोगों, लेकिन वो अपने आप नहीं बजा, बहुत से लोगों ने बड़ा प्रयास किया, उसके कारण से योग पूरे विश्व में पहुंचा है। आयुर्वेद को भी यदि पूरे विश्व में वास्तव में पहुंचाना है तो आयुर्वेद के लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अपने आप देखिए, मार्केट में हम लोग जाते हैं कोई चीज खरीदने, तो जो चीज खरीदनी है, 1 तोला खरीदना है सोना, तो 1 तोला खरीदने के लिए आज के रेट में अगर 50,000 का रेट है तो 50,000 रुपये में होंगे तो मिलेगा, 49 होंगे तो नहीं मिलेगा। तो विश्व में यदि हमको अपने राष्ट्र की और राष्ट्र में होने वाली चिकित्सा पद्धति या जीवन पद्धति
आयुर्वेद के लिए पहुंचाना है तो हमको उसकी पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उस कीमत क्या है, हमारे जो लोग हैं उनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके और आयुर्वेद के लिए काम करना, आयुर्वेद के लिए समर्पण करना, इसमें कहीं कोई किसी के साथ बलिदान नहीं करना है, किसी के साथ बलिदान नहीं करना, लेकिन परिश्रम पूर्वक आयुर्वेद का अध्ययन करना, यही वास्तव में एक लक्ष्य है। आयुर्वेद में हमने जो विभिन्न आयाम बनाए, उसमें कुछ शिक्षकों का काम है, कुछ विद्यार्थियों का काम है। हमारा विश्वास है इस देश में जो परंपरा पड़ गई है कि जो काम करेगी सरकार करेगी। हम लोगों को अनुभव हो गया होगा कि सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं और सीमाएं सरकार जीवन यापन के लिए शायद व्यवस्था कर दे। उन्नति करनी है तो व्यक्ति को लगना पड़ेगा। विदेश में भी जो रिसर्चेज होती हैं गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं होती, वहाँ विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से होती हैं। हमने भी इस काम को प्रारंभ किया है। जैसा कि आपने देखा, एक विद्यार्थियों में आयुर्वेद के अध्ययन के लिए, चरक के अध्ययन के लिए नई चेतना भरने का प्रयास किया जाए, इसकी विचार 2-4 कार्यकर्ताओं के मन में आया और पूरे देश में उसका परिणाम दिखाई दिया। आज जो लोग सफल हुए हैं, जिन लोगों ने भागीदारी की है और जिन लोगों ने भागीदारी नहीं की, लेकिन इसके बाद भी आज के इस कार्यक्रम को देखने सुनने के बाद जिनको लगता है कि नहीं नहीं भाई आयुर्वेद के इस प्रकार से भी विचार किया जा सकता है, उन सबके लिए मैं बधाई देता हूं। और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की टोली के लिए नए ऐसे ही नए नए कार्यक्रमों का विचार करके, नए नए कार्यक्रमों का संचालन करके आप सब लोग आयुर्वेद की उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे। और अंत में मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात का विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम आपको, आपके आशीर्वाद से हम लोग अभिभूत हुए कि आपने अपने बहुमूल्य समय से हम लोगों को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। अजीत जी म्यूट कर दीजिए सभी को, आवाज कहाँ से आ रही। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मध्य प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर APS चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। डॉक्टर APS चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी, बहुत ही सुंदर संचालन के लिए और इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं इससे पहले कि आभार व्यक्त करूं, हमारे कई बच्चे, हमारे जो स्नातकोत्तर PG जो हमारा जो स्नातकोत्तर ऐसे कंपटीशन जो हमारा हुआ था ऑल इंडिया का, उस ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन का हमने वादा किया था कि इस कार्यक्रम के साथ हम परिणाम भी घोषित करने वाले हैं। तो आभार प्रदर्शन के पूर्व मैं चाहूँगा कि उन बच्चों को वो ये जो उनकी जिज्ञासा उनकी है और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जी बिल्कुल बिल्कुल पहले निबंध प्रतियोगिता का तो मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे ये परिणाम डिक्लेयर करने का आपने मौका प्रदान किया है। तो जो बच्चे हमारे सब इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि लगातार जो है मध्य प्रदेश में भाई उद्धव दास मेहता स्मृति जो हम स्नातकोत्तर निबंध प्रतियोगिता जो लगातार करते जा रहे हैं, और इस बार हमें थोड़ा सा संदेह हुआ था कि लॉकडाउन की वजह से शायद पत्राचार और जो डाक का जो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें दिक्कत होगी, लेकिन ऑनलाइन सारा प्रक्रिया की गई। और बड़े हर्ष के साथ बताते हुए सूचित कर रहा हूं मैं आपको कि 150 से ज़्यादा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही मतलब एक ही बार में इतने सारे निबंध हमें प्राप्त हुए। और इस अवसर पर मैं उन सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काल में भी अपना पूरा ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ पार्टिसिपेट किया। साथ ही
इस प्रतियोगिता में जो इवेल्युएटर रहे हमारे, जो हमारे जजेस रहे, उन सब के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ पर इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया। तो अब मैं इंतजार की घड़ियां समाप्त करते हुए मैं यहाँ घोषित करना चाहूँगा कि इस बार की 2020 की निबंध प्रतियोगिता जो हुई है उसके विनर जो है, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि उस प्रतियोगिता के जो विनर हैं उनको जैसे हम प्रतिवर्ष भोपाल में बुला करके और फेलिसिटेशन हम किया करते रहे हैं। क्योंकि ये समय अभी थोड़ा सा कठिन है, अभी प्रत्यक्ष रूप से उस तरह का कार्यक्रम शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो वो कार्यक्रम किस तरह से होगा और कैसे होगा वो आपको सूचना हम देंगे, लेकिन आपका जो पारितोष है, जो आपका पुरस्कार है, वो आप तक पहुंचेगा। और लीजिए, मैं आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ इस प्रतियोगिता का परिणाम। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर पुनीता शर्मा को, जो कि पीजी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। इन्होंने इस प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसी मेधावी और ब्रिलियंट स्टूडेंट डॉक्टर पुनीता शर्मा को विश्व आयुर्वेद परिषद मध्य प्रदेश की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि भविष्य में भी वो इसी तरह से अपने जो प्रतिभा है उसका जो है वो प्रदर्शन करती रहेंगे। तो डॉक्टर पुनीता शर्मा, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, NIA जयपुर, तो इस प्रतियोगिता में 3य स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। लीजिए, आपके सामने आ गए हैं इस प्रतियोगिता के रनर अप। ये हैं डॉक्टर पुनीत भारद्वाज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान IPGT एंड RA, जो हमारे जामनगर की प्रतिष्ठित संस्था, उसके आप स्कॉलर हैं, उसके विद्यार्थी हैं, उसके शोधार्थी हैं, उसके ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। तो डॉक्टर पुनीत को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रतियोगिता में 2य स्थान प्राप्त किया है और आगे भी आप इसी तरह से अपना प्रदर्शन जारी करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीजिए, अब मैं इस प्रतियोगिता के विनर का नाम घोषित करने जा रहा हूं और निश्चित रूप से सारे विद्यार्थियों को इसकी जिज्ञासा होगी। तो आपके सामने प्रस्तुत है इस प्रतियोगिता के विजेता डॉक्टर दास अशोक कुमार। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण में और IPGT एंड RA अगेन, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर के होनहार विद्यार्थी डॉक्टर दास अशोक कुमार को, जो कि द्रव्य गुण विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको पूरे विश्व आयुर्वेद परिषद के पूरे परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप आगे भी इसी तरह के प्रतियोगिताओं में और एकेडमिक में भी आप आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। तो ये जो प्रतियोगिता थी, इसमें हमारे ये 3 होनहार विद्यार्थी थे और इसके बाद में ये उन 10 विद्यार्थियों की सूची है जो हमारे टॉप 10 रहे पूरी प्रतियोगिता में। जैसा कि 3 के नाम अभी मैंने आपको बताए थे, डॉक्टर दास अशोक, उसके बाद डॉक्टर पुनीत भारद्वाज, डॉक्टर पुनीता शर्मा, 4थे स्थान पर डॉक्टर राजदीप पेन, डॉक्टर कार्तिक केपी, ये 5वें स्थान पर, डॉक्टर वनीता राठौड़ 6ठे स्थान पर, डॉक्टर श्रेय एम सोनी ये 7वें स्थान पर, डॉक्टर फरहीन शेख ये 8वें स्थान पर, डॉक्टर अरुंधति मुखेडकर जो कि जामनगर से हैं 9वें स्थान पर, और डॉक्टर आनंद लोंडे जो कि तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर के विद्यार्थी हैं। तो ये सारे हमारे 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। तो आपको पूरे विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के लिए, तो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर SP मिश्रा साहब का, जो कि इस कार्यक्रम के हमारे वरिष्ठतम हमारे मुख्य अतिथि रहे। वे किसी टेक्निकल कारण से शायद हमारे बीच में अपना उद्बोधन न दे सके। मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर BM गुप्ता सर के, जिन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन आज प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव, जिनके उद्बोधन हमने अभी सुने, डॉक्टर योगेश चंद्र जी मिश्रा जी, जिनका सतत मार्गदर्शन हमें कार्यक्रमों के लिए प्राप्त होता रहा है। मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर महेश व्यास जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें यहाँ प्रदान किया। साथ ही डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि न केवल उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, बल्कि इस कार्यक्रम के लिए जो टेक्निकल जितनी भी अवेलेबिलिटी थी, जो भी हमारी
तकनीकी पूरी टीम को उन्होंने मदद की और पूरा ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर अश्विन भार्गव साहब का, राष्ट्रीय महासचिव विश्व आयुर्वेद परिषद का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर मधुरिमा भार्गव जी का, जो कि महिला कार्यकारिणी की राष्ट्रीय हमारी अध्यक्ष हैं विश्व आयुर्वेद परिषद की, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही राष्ट्रीय सचिव हमारे डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस कार्यक्रम में वे उपस्थित हुए। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी का चूंकि कार्यक्रम था, लेकिन उनके संरक्षक हमारे वरिष्ठतम डॉक्टर गोपाल दास जी मेहता और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत आभार कि उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इसके बाद मैं आभार व्यक्त करूंगा हमसे जुड़े हुए संहिता विभाग के समस्त प्रोफेसर्स का, समस्त स्कॉलर्स का, समस्त विद्वानों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। साथ ही सारे जो हमारे 450 कंटेस्टेंट जिन्होंने जिन्होंने चरक का जो पैराग्राफ राइटिंग में पार्टिसिपेट किया था, मैं उन सभी 150 विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रदेश के सारे महाविद्यालयों का, देश के सारे महाविद्यालय के उन्हीं विद्यार्थियों, उनके मेंटर्स और उन संस्थाओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, इस प्रतियोगिताओं को आयोजन करने के लिए अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अंत में इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित जूम कार्यक्रम में उपस्थित सारे प्रतिभागी, सारे हमारे उपस्थित सारे महानुभाव, और इसके साथ ही विश्व आयुर्वेद परिषद का जो हमारा फेसबुक पेज है, उस पेज के ऊपर हमसे रूबरू हो रहे हैं, हमसे लाइव, हमसे इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग विश्व आयुर्वेद परिषद को इसी तरह से मिलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः चरक जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं पूरे विश्व आयुर्वेद परिषद